Good morning, class, and welcome to the next lecture of operations management. Okay, so we were on chapter number 3, and we just completed chapter number 3 in the previous lecture. So I'd just like you to try do some of the problems at the end of the chapter. Okay, so at the end of the chapter, we have solved problems. It's problem number 3.1. Okay, so I'd like you to have a look at it. So problem number 3.1 is you have to construct an activity on node network diagram based on the following information. Okay? So you have activity A, activity B, C, D, E. Okay. So activity A has no immediate predecessor. Activity B has none either. Activity C has none, and activity D has two predecessors. One is A and B, and similarly E has one predecessor, which is activity C. Okay. So try making an activity or node diagram without looking at the solution. Okay, just think about it for a while.
Okay, class. So basically, we are given for five activities: activity A, B, C, D, and E. Okay, so we should start with the activities which have immediate predecessors. Okay, so there are only two activities which have immediate predecessors. One is activity D, and the other one is activity E. Okay, so we can conduct a circle. We can make a circle, mark it with the letter D. Okay, and D के पीछे then we have activity A and B. Okay, so D is preceded by two activities A and B. Okay, so D से पहले हम दो सर्कल्स बना देते हैं, ठीक है, and we will indicate that. ठीक है, A का एरो पॉइंट कर रहा है from A to D और B का एरो पॉइंट कर रहा है B to D, and this is D. ठीक है, so this actually shows that D is preceded by two activities A and B. Okay, so we should make this part of the diagram first, this one. Okay, उसके बाद we can make a circle and mark it with activity E. ठीक है, E से पहले एक predecessor है which is C, तो हम यहाँ C का सर्कल बना देते हैं. ठीक है, और arrow should point from C to E because E is preceded by C. ठीक है, यानी कि C पहले आ रहा है E से, तो arrow should go from C to E. C पहले आता है और E बाद में आ रहा है, तो arrow should go from C to E. ठीक है, so this is basically your entire diagram. You have five activities A, B, C, D and E. Okay, और ये जो start activity है, it's a dummy activity. This has been added just to complete the diagram. Okay, same goes for end activity because we have not been told which one is the start and end activity, so we can just assume that there is another activity which is starting point and another activity which is ending point, and these are the dummy activities. ठीक है, they basically have no meaning. We have just put them in place to complete the diagram. Okay. Okay, similarly, have a look at problem 3.3. Okay, so in problem 3.3 we have to calculate the critical path, project completion time t, and project variance. Okay, we will not calculate the project variance. We will just calculate the critical path, the project and project completion time. So have a look at it. We have a number of activities: activity A, B, C, D, E, F, and G. And against those, we are given the total activity time. Time is the activity time. We are given the ES, which is the earliest start time. We are given the EF, earliest finish time, LS, latest start time and latest finish time, and the slack time. Okay, we have already discussed what is the slack time. I already told you about the formula to calculate slack time. So slack time has been calculated using that formula. Okay. Okay, so think about it, and you are also given the network diagram. Okay, which means activity and node diagram here. So think about it for a while, and then we'll discuss it.
Okay, you can see that we have calculated the slack time. Okay, so over here the most important information we have is the slack time. Okay, so basically, what was the formula of slack time? I hope you remember that. So slack time we discuss किया था. Slack time can be calculated using the formula. So we can use the formula LF minus EF. LF माइनस ई एफ को यूज़ करते हैं तो एक्टिविटी ए का स्लैक टाइम हमारे पास आ जाता है 2 - 2 0, एक्टिविटी बी का 4 - 3, ठीक है. और इस तरह हमने बाकी एक्टिविटीज़ का भी स्लैक टाइम किया. एक्टिविटी सी को देखें तो इसका स्लैक टाइम 4 - 4 और एक्टिविटी डी का है जी 8 - 7 है, एक्टिविटी ई का 8 - 8 है और एक्टिविटी जी का है 13 - 13. सो बिकॉज हमने क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना है. क्रिटिकल पाथ के बारे में क्या डिस्कस किया था? क्रिटिकल पाथ इज बेसिकली दैट पाथ ऑन विच ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट लाई. तो यहाँ पे वी आर ओनली कंसर्न विद द क्रिटिकल एक्टिविटीज, वी आर नॉट कंसर्न विद द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज. ठीक है, तो क्रिटिकल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जिनका स्लैक टाइम 0 है. ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच हैव अ स्लैक टाइम ऑफ 0. तो क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करने के लिए वी आर ओनली गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन those activities which have a slack time equal to 0. ठीक है, तो पहली एक्टिविटीज का स्लैक टाइम 0 है, दैट इज एक्टिविटी ए. ठीक है, तो एक्टिविटी ए का टोटल टाइम क्या है? ठीक है, टोटल टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द एक्टिविटी दैट इज 2. ठीक है, तो आपका टोटल प्रोजेक्ट टाइम जो है वो, अच्छा पहले हम इसकी बात कर लेते हैं क्रिटिकल पाथ की. ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी ए, ठीक है, और एक्टिविटी सी, एक्टिविटी ई और एक्टिविटी जी. ठीक है, तो ए सी ई एंड जी. ठीक है, सो दिस इज योर क्रिटिकल पाथ. ए टू सी, C to E and E to G. This is your critical path. ठीक है, so critical path is also the shortest time it takes to complete a project. ठीक है, उसके अलावा हमने प्रोजेक्ट टोटल प्रोजेक्ट टाइम कैलकुलेट करना है. टोटल प्रोजेक्ट टाइम हम कैलकुलेट अलॉन्ग द बेसिकली हम टोटल प्रोजेक्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे अलॉन्ग द क्रिटिकल पाथ ओनली. ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ उन एक्टिविटीज़ का टाइम कंसिडर करेंगे विच आर क्रिटिकल एक्टिविटीज. ठीक है, सो टोटल प्रोजेक्ट टाइम हम कैलकुलेट करेंगे अलॉन्ग द क्रिटिकल पाथ. ठीक है, और क्रिटिकल पाथ में सिर्फ वो एक्टिविटीज़ जो क्रिटिकल पाथ में आ रही हैं हम उनका टाइम कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो क्रिटिकल पाथ में हमारे पास बेसिकली 1 2 3 4 एक्टिविटीज़ हैं. तो पहली एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ इज एक्टिविटी ए और एक्टिविटी का टोटल एक्टिविटी टाइम कितना है? 2. ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं एक्टिविटी सी. एक्टिविटी सी का टोटल टाइम कितना है? 2. उसके बाद एक्टिविटी ई पे आ जाते हैं, एक्टिविटी का टोटल टाइम कितना है? 4. और एक्टिविटी जी पे आ जाते हैं, इसका टोटल टाइम है 5. ठीक है, सो टोटल प्रोजेक्ट टाइम इज बेसिकली इक्वल टू द एक्टिविटी टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी. वो हो जाएगा टोटल प्रोजेक्ट टाइम विल बी इक्वल टू 2 + 2 + 4 + 5 इज इक्वल टू 30. ठीक है, अगर आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना आती है तो यू कैन आल्सो ट्राई दैट. दिस इज समथिंग यू स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो आपको वेरिएंस का फॉर्मूला आता है तो बट हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई वेरिएंस के हवाले से यहाँ पे. ठीक है, सो बट थिंग इज इस टेबल पे वेरिएंस की क्या वैल्यूज कैलकुलेट हुई हैं. सो बेसिकली दिस इज द सोल्यूशन वी आर लुकिंग एट. ठीक है, okay, looks like a solution to me.
मे बी ओरिजिनल क्वेश्चन में वेरिएंस की वैल्यूज़ दी गई हो, ठीक है। और द गुड थिंग इज इस टेबल में वेरिएंस की वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली काम क्या करना है, वेरिएंस की वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना और आपके पास टोटल वेरिएंस आ जाएगी, ठीक है। सो यू कैन ट्राई दैट इफ यू वांट। You can also have a look at problem 3.4. It's also an interesting one. To complete the wing assembly for an experimental aircraft, Gilbert has laid out 7 major activities involved. These activities have been labeled A through G in the following table, which also show their estimated completion times in weeks and immediate predecessors. Determine the expected time and variance for each activity. You can have a look at this as well. ठीक है, एक्चुअली कुछ इसमें फॉर्मूलेज इस्तेमाल हुए जो हमने नहीं पढ़े एज सच, ठीक है। लाइक एक्सपेक्टेड टाइम का एक फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। बट यू कैन एटलीस्ट हैव अ लुक एट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 3.5, इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट टाइम जो है इट्स एक्चुअली इक्वल टू द टोटल प्रोजेक्ट टाइम, ठीक है। वेरिएंस ऑफ द क्रिटिकल पाथ is again going to be sum of the variance of each critical activity. Standard deviation is simply the under root of variance. ठीक है, बहुत अच्छा सा डिटेल डायग्राम बना हुआ है ऑफ द सेम प्रॉब्लम, आई गेस। द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 3.5, उसका एक बड़ा बड़ा डिटेल सा एक्टिविटी और नोट डायग्राम बनाया हुआ, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट यूजफुल। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। दिस डायग्राम इज बेसिकली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन दिस टेबल, so you can see अगर आपको इस तरह का टेबल दिया, how you can construct a diagram like this from here, ठीक है। तो बेसिकली एक्टिविटी, दिस इज एक्टिविटी है, इसका उन्होंने ये 0 है और EF7 है एंड सो ऑन LS एंड LF। सेम गोज फॉर एक्टिविटी C का ES EF और एक्टिविटी E है, ठीक है। इस टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, लाइक which activity precedes which one, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से मेंशन किया कि there are no predecessors, B and at least you can just have a look at the diagram and see how it looks like. That should be good enough for you. This graph here is actually the graph of normal distribution, okay. इसको हम normal curve कहते हैं।
है। सो दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम इन कॉन्सेप्ट्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास हमें कोई प्रॉब्लम भी बना। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर विल बी एक्चुअली we'll be discussing chapter number 4. That is the end of chapter 3. We'll start with chapter number 4. It's chapter number 4 is about forecasting. Okay. So in this chapter we'll basically थोड़ा सा chapter begins with a description of Walt Disney Company. ठीक है, इसका बेसिकली नाम है डिज्नी वर्ल्ड। ठीक है, एंड इट स्टार्ट डिस्कसेस व्हाट इज़ फोरकास्टिंग टाइम हराइजंस क्या है, इसका लाइफ साइकिल पे क्या इफेक्ट है, टाइप्स ऑफ फोरकास्ट है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फोरकास्टिंग की बात होगी, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या रोल है, कैपेसिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देन वील टॉक अबाउट द 7 स्टेप्स इन द फोरकास्टिंग सिस्टम। फिर हम फोरकास्टिंग अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द डिफरेंट अप्रोचेस। ठीक है, तो डिफरेंट अप्रोचेस में हमारे पास क्वांटिटेटिव अप्रोचेस हैं, क्वालिटेटिव अप्रोचेस हैं, फिर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इसमें टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है अभी। ठीक है, फिर एसोसिएटिव फोरकास्टिंग मेथड्स लाइक रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस है। ठीक है, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फोरकास्ट की बात करेंगे। So when you finish this chapter, you should be able to compute 3 measures of forecast accuracy, develop seasonal indexes, conduct a regression correlation analysis, use tracking signal। ठीक है, तो डिज्नी वर्ल्ड एक कंपनी है, आपको पता ही है, जो डिज्नी पार्क्स की जो मैनेज करती है। ठीक है, तो बेसिकली इट हैज़ अ नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स, इट्स नॉट ओनली डिज्नी पार्क, इट्स बेसिकली डिज्नी रिजॉर्ट है। ठीक है, ग्लोबल पोर्टफोलियो, इट्स बेसिकली इट हैज़ ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट ओन्स रिजॉर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके पोर्टफोलियो में इंक्लूड्स पार्क्स इन हांगकॉन्ग, पेरिस, टोक्यो, ऑरलैंडो एंड एनाहेम। ठीक है, दीज रिजॉर्ट्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। रेवेन्यूज आर derived from people, from how many visitors and how they spend their money। ठीक है, फोरकास्टिंग इज ऑल अबाउट, अगर आप डिज्नी वर्ल्ड का बिजनेस देखें तो इट्स ऑल अबाउट कि एक पार्क में हाँ एवरी डे कितने विजिटर्स आते हैं, बिकॉज दे अर्न देयर रेवेन्यू फ्रॉम द विजिटर्स हु विजिट दैट पार्क और रिजॉर्ट। ठीक है, तो दे हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी विजिटर्स विजिट दैट पार्क एवरी डे, एवरी 3 months, एवरी 6 months। ठीक है, तो इस चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट फोरकास्टिंग इज अबाउट। डेली मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स ओनली द फोरकास्ट एंड एक्चुअल अटेंडेंस एट ईच पार्क। डेली फोरकास्ट रिपोर्ट्स बेसिकली टेल्स के फोरकास्ट एडवांस में की जाती है। वी वांट टू नो कि अगर आज इतने विजिटर्स आए पार्क में तो कल कितने आएंगे, व्हाट इज एस्टिमेटेड नंबर टुमारो, उससे अगले दिन कितने आएंगे। ठीक है, दे डू फोरकास्टिंग ऑन अ डेली बेसिस। इसके अलावा दे आल्सो जनरेट वीकली, मंथली, एनुअल एंड 5-year फोरकास्ट। ठीक है, तो वो डेली बेसिस पे भी करते हैं। इसके अलावा वीकली फोरकास्ट भी बनाते हैं। ठीक है, मंथली फोरकास्ट भी बनाते हैं, यानी कि एक महीने में उनके पास कितने, लेट से अगर पिछले महीने इतने विजिटर्स आए हैं पार्क में तो अगले महीने में कितने आएंगे। ठीक है, उससे 3 महीने बाद कितने विजिटर्स एक्सपेक्टेड हैं, 6 महीने बाद कितने एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस तरह की फोरकास्टिंग करते हैं, डेली की भी, डेली बेसिस की भी, वीकली की भी, मंथली की भी, एंड दे आल्सो डू एनुअल। ठीक है, पूरे साल की भी फोरकास्टिंग करते हैं। इसके अलावा दे आल्सो प्रिपेयर लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, 5-year फोरकास्ट। ठीक है, दिस फोरकास्ट आर यूज्ड बाय लेबर मैनेजमेंट मेंटेनेंस ऑफ। ठीक है, तो इन फोरकास्ट का इस्तेमाल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होता है। ठीक है, लेबर मैनेजमेंट को उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया हुआ होता है, मेंटेनेंस, ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड पार्क स्केड्यूलिंग। इसके
इसके अलावा फोरकास्ट इज यूज टू एडजस्ट ओपनिंग टाइम्स, राइड्स, शोज, स्टाफिंग लेवल्स एंड गेस्ट एडमिटेड. Inputs to the forecasting model include airline specials, Federal Reserve policies, Wall Street trends, vacation holiday schedules for 3,000 school districts around the world. Average forecast error for the 5-year forecast is 5%. Average forecast error for annual forecast is between 0 and 3%. वो जो इनपुट्स यूज़ करते हैं अपने फोरकास्टिंग मॉडल में, इट इंक्लूड्स एयरलाइन स्पेशल्स, फेडरल रिजर्व पॉलिसीज, वॉल स्ट्रीट ट्रेंड्स. ठीक है, डिफरेंट तरह की ट्रेंड्स को फोरकास्ट में शामिल किया जाता है. ठीक है, जब आप फोरकास्ट बनाते हैं तो बेसिकली यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट अबाउट सेवरल थिंग्स. ठीक है, लाइक एयरलाइन स्पेशल एंड फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज़ किस तरह की, वॉल स्ट्रीट के ट्रेंड्स देखते हैं, स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स देखते हैं. ठीक है, कि लोगों ने लेट से कितने स्टॉक्स खरीदे, कितने सेल किए इन लेट्स से गिवन ईयर. ठीक है, हॉलीडेज के वेकेशन स्केड्यूल्स देखते हैं फॉर 3,000 स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बेसिकली दोज डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ बहुत सारे स्कूल्स होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे लोग किस तरह की जगहों पे वेकेशन करने जाते हैं, कितने अरसे की वेकेशन के लिए जाते हैं, इस तरह के नंबर्स जो हैं वो सारे हम यूज़ करते हैं टू मेक फोरकास्ट. ठीक है, एवरेज फोरकास्ट एयर फॉर द 5-year फोरकास्ट 5%. फोरकास्ट एयर की हम बाद में कब बात करेंगे. ठीक है, इसी तरह एवरेज फोरकास्ट एयर फॉर एनुअल फोरकास्ट इज बिटवीन 0 and 3%. ठीक है, इसका हम डिस्कस करेंगे बाद. अच्छा, द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फोरकास्टिंग टाइम होराइजंस इज के फोरकास्टिंग डिफरेंट टाइम होराइजंस के लिए की जाती है. मैंने आपको एग्जांपल दी है वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड की. ठीक है, डिज्नी वर्ल्ड डेली बेसिस भी फोरकास्टिंग करता है, यानी कि वो डेली फोरकास्ट करता है, अगले दिन की फोरकास्ट भी करेगा, मंथली बेसिस भी करता है, यानी कि अगले मंथ की फोरकास्ट भी करेगा, और एनुअल बेसिस भी करता है. ठीक है, तो डिफरेंट टाइम पीरियड्स को वी कैन डिवाइड देम इनटू शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, मीडियम रेंज फोरकास्ट एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्ट. ठीक है, तो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट में क्या है, बेसिकली इट्स अप टू 1 year, जनरली लेस देन 3 months. ठीक है, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट इज टिपिकली फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ लेस देन 3 months. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिज्नी वर्ल्ड ने पता लगाना है कि 2 महीने बाद उसके पार्क्स में कितने विजिटर्स आने वाले हैं. ठीक है, फोरकास्ट इज बेसिकली एन एस्टिमेट अबाउट द फ्यूचर. हम पहले से अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि 3 महीने बाद कितने विजिटर्स एक्सपेक्टेड हैं या 2 महीने बाद कितने विजिटर्स. दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ शॉर्ट रेंज फोरकास्ट. द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट शॉर्ट रेंज फोरकास्ट इज कि इसमें जो टाइम फ्रेम होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो छोटा होता है काफ़ी, 2 महीने का होगा, 3 महीने का होगा टिपिकली. ठीक है, ठीक है, तो एक शॉर्ट टर्म फोरकास्ट परचेजिंग डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होते हैं. इसके अलावा जॉब असाइनमेंट्स, प्रोडक्शन लेवल्स को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होते हैं. उसके बाद आ जाते हैं मीडियम रेंज फोरकास्ट की तरफ. मीडियम रेंज फोरकास्ट दे आर लॉन्गर देन शॉर्ट रेंज फोरकास्ट. मीडियम रेंज फोरकास्ट की जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, इट इज़ लॉन्गर देन शॉर्ट रेंज फोरकास्ट. इट इज़ टिपिकली फ्रॉम 3 months to 3 years. ठीक है, तो 3 months से ज़्यादा अरसे के फोरकास्ट को हम मीडियम रेंज फोरकास्ट कहते हैं, और मैक्सिमम ये 3 years के होते हैं. ठीक है, तो लेट्स से अगर हम पता लगाना चाहते हैं कि 6 महीने बाद डिज्नी वर्ल्ड की कितनी सेल होगी. ठीक है, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ मीडियम रेंज फोरकास्ट. ठीक है, सेल्स एंड प्रोडक्शन में बहुत इस्तेमाल होते हैं. इस तरह मैंने आपको सेल्स की एग्जांपल दी, इस तरह बजटिंग में भी इस्तेमाल होंगे. अगर तो बेसिकली कंपनी से फोरकास्टेड बजट्स भी बनाती है. ठीक है, यानी कि देख फोरकास्ट के फॉर एग्जांपल इन द नेक्स्ट 6 months व्हाट विल बी देयर रेवेन्यूज़ एंड व्हाट विल बी देयर एक्सपेंसेस. ठीक है, इन चीज़ों को वो फोरकास्ट करती है. दिस इज समथिंग यू स्टडी इन कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, बजटिंग. फिर लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पे आते हैं, दे आर टिपिकली ऑफ 3 years. ठीक है, तो हम अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि 3 साल के बाद हमारी कंपनी की सिचुएशन कैसी होगी, सेल्स कितनी होंगी, विजिटर्स कितने आएंगे. ठीक है, एक्सपेंसेस कितने होंगे, इस तरह की चीज़ों का अंदाज़ा लगा. ठीक है, इट इज़ वेरी यूज़फुल इन न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग. अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें पहले से अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी सेल्स कितनी होंगी 2-3 साल बाद, ताकि हमें पता चले कि इस न्यू प्रोडक्ट से हमें कितना
रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। फैसिलिटी लोकेशन में इसका इस्तेमाल, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका बहुत इस्तेमाल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वी डू अ लॉट ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली हमने फोरकास्ट करना होता है टू एस्टिमेट के वेदर वी हैव डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट या वी हैव डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट का अक्सर मकसद ये होता है वी वांट टू एस्टिमेट वेदर वी हैव अ डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट। तो हम एस्टिमेट करते हैं 3 साल बाद का हम एस्टिमेट बनाएंगे, या उसको हम फोरकास्ट भी कहते हैं। एस्टिमेट फोरकास्ट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, ठीक है। तो 3 साल बाद का हम फोरकास्ट पहले से प्रिपेयर करके देन वी डिसाइड कि वेदर दिस न्यू प्रोडक्ट इट हैज़ एनी डिमांड, वेदर इट कैन ब्रिंग अस न्यू रेवेन्यू एंड सो ऑन, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू करने से पहले भी वी प्रिपेयर फोरकास्ट, यानी कि अगर हम कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए पहले विल हैव टू डू सम रिसर्च अबाउट इट, एंड उसमें हम फोरकास्टिंग भी करेंगे टू अंडरस्टैंड वेदर दिस हैज़ इनफ डिमांड एंड वेदर इट विल बी एबल टू ब्रिंग इनफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी इन द फ्यूचर, ठीक है। सो मीडियम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट डील विद मोर कॉम्प्रिहेंसिव इशूज एंड सपोर्ट मैनेजमेंट decisions regarding planning and products, plants and processes. Medium long range forecasts where they deal with more सब कहते हैं ना comprehensive issues, बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव और बड़े इश्यूज को डील करते हैं, ठीक है। एंड सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्लानिंग एंड प्रोडक्ट्स, प्लांट्स एंड प्रोसेसेस। सो देयर सपोर्ट डिसीजंस लाइक प्लानिंग डिसीजंस में प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, उसका प्लांट्स एंड प्रोसेसेस को बनाने की डिसीजन है। मीडियम एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्ट का बहुत इस्तेमाल है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज डिफरेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग यूजुअली एम्प्लॉयज डिफरेंट मेथडोलॉजीज दैन लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, बट एट द सेम टाइम आपकी फोरकास्टिंग जितने कम अरसे की होती है उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। यानी कि शॉर्ट टर्म फोरकास्ट बिकॉज दे आर फॉर अ फ्यू मंथ्स के होते हैं अक्सर, ठीक है, एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म फोरकास्ट सालों के होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट बिकॉज दे आर फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, उनको एक्यूरेटली फोरकास्ट करना ज़्यादा आसान है। दैट इज़ द रीज़न कि आपके शॉर्ट टर्म फोरकास्ट में दे आर मोर एक्यूरेट दैन लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ठीक है। हर स्टेज के लिए वी प्रिपेयर अ डिफरेंट काइंड ऑफ फोरकास्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ स्टेजेस रिक्वायर लॉन्गर फोरकास्ट देन मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ठीक है। बिकॉज इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट जो है वो नया मार्केट में आता है, उसकी सेल्स ग्रो कर रही होती है, ठीक है। सो वी नीड अ लॉन्गर टर्म फोरकास्ट बिकॉज अभी वो नया मार्केट में चांसेस इज इट विल स्टे इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ग्रोथ का भी यही है, ठीक है। प्रोडक्ट आपका ग्रो कर रहा होता है, उसकी सेल्स या डिमांड ग्रो कर रही होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी वी नीड टू प्रिपेयर लॉन्गर टर्म। मैच्योरिटी डिक्लाइन का, या मैच्योरिटी में आके ना उसकी सेल्स स्टेबल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वी नो दैट प्रोडक्ट सेल्स आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज, सो वो जो मैच्योरिटी स्टेज है इट्स नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो वी नीड शॉर्टर टर्म फोरकास्ट फॉर दैट। सी ना डिक्लाइन स्टेज में प्रोडक्ट जो है तकरीबन इट्स टाइम टू लीव द मार्केट, तो डिक्लाइन स्टेज जो है वो और कम अरसे की होती है, सो नीड अ शॉर्टर टर्म फोरकास्ट ऑफ दैट। एज प्रोडक्ट पासेस थ्रू द लाइफ साइकिल, फोरकास्ट आर यूजफुल इन प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग लेवल्स, इन्वेंट्री लेवल्स एंड फैक्ट्री कैपेसिटी। ठीक है। फोरकास्ट बहुत डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, सेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा दे आर ऑल्सो यूज टू डिटर्मिन स्टाफिंग लेवल्स, यानी कि स्टाफिंग लेवल्स का मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू स्टाफ इन योर कंपनी। सो दीज फोरकास्ट आर यूज्ड टू डिटर्मिन वेदर यू विल नीड टू हायर न्यू स्टाफ इन द फ्यूचर, ठीक है। इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू इन्वेंट्री लेवल्स, वेदर यू विल नीड टू बाय मोर इन्वेंट्री इन द फ्यूचर। फैक्ट्री कैपेसिटी से भी रिलेटेड है कि इफ़ यू एक्सपेक्ट योर फोरकास्ट सेल्स टू बी मोर, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपकी फोरकास्ट सेल्स है वो ज़्यादा होने वाली है, सो यू माइट नीड टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ योर फैक्ट्री टू मीट द इंक्रीज डिमांड।
ठीक है। सो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन का थोड़ी सी समरी आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन इज़ द बेस्ट पीरियड टू इंक्रीज मार्केट शेयर। सो R&D इंजीनियरिंग इज़ क्रिटिकल इन दिस स्टेज। ठीक है। सेल्स आपकी ऊपर जा रही हैं। ग्रोथ स्टेज में इट इज़ प्रैक्टिकल टू चेंज प्राइस और क्वालिटी इमेज। ठीक है। इट स्ट्रेंथन्स योर नीश। इसके अलावा फिर इस तरह एक्सबॉक्स हो गया, आईपॉड्स हो गए। ठीक है। उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। फिर आपका मेच्योरिटी स्टेज है, पुअर टाइम टू चेंज इमेज, प्राइस और क्वालिटी। ठीक है। कंपेटिटिव कॉस्ट बिकम क्रिटिकल, डिफेंड मार्केट पोजीशन। ठीक है। सो मेच्योरिटी स्टेज पे उसकी मतलब जो है मार्केट शेयर जो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सेल्स स्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो इट इज़ नॉट अ गुड टाइम टू चेंज द इमेज, प्राइस और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कंपेटिटिव कॉस्ट बिकम क्रिटिकल, सो यू हैव टू डिफेंड योर मार्केट पोजीशन। आपका जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको यू ट्राई टू कीप इट एंड डिफेंड इट। ठीक है। डिक्लाइन स्टेज में द प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। रेवेन्यू एक्चुअली डिक्लाइंस, तो इट कॉस्ट कंट्रोल बिकम्स क्रिटिकल। ठीक है। सिमिलरली आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसमें आपका पहली स्टेज इंट्रोडक्शन, उसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट इज क्रिटिकल बिकॉज प्रोडक्ट अभी नया नया मार्केट में आ रहा है। ठीक है। फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन चेंजेस होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन रन होते हैं, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है। ग्रोथ स्टेज में आ जाए तो फोरकास्टिंग इज इवन मोर क्रिटिकल बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी प्रोडक्ट जो सेल है इंक्रीज़ हो रही है, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो रहा है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिलायबिलिटी ज़रूरी है। competitive product improvements and options। ठीक है। You might need to you might need to make your product better depending on what kind of competition you have in the market। You have to increase the capacity of your company, ठीक है, to produce more। You have to shift to focus towards product। ठीक है। product focus होना चाहिए आपका। You also need to enhance distribution। ठीक है। आपने distribution को भी increase करना होता है। इसके अलावा मेच्योरिटी है। मेच्योरिटी स्टेज में स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है। प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले चुका है। ठीक है। लेस रैपिड प्रोडक्ट चेंजेस है। ठीक है। मेजर चेंजेस नहीं करेंगे आप प्रोडक्ट में, देयर विल बी माइनर चेंजेस। ठीक है। ऑप्टिमम कैपेसिटी, यू हैव रीच्ड द ऑप्टिमम कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ योर मार्केट शेयर। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ प्रोसेस, लॉन्ग प्रोडक्शन रन हो सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड कॉस्ट कटिंग। ठीक है। तो यू will not be spending a lot of money on product improvement at this stage। You will be trying to save cost। ठीक है। So you will be cost cutting। ठीक है। You will be saving money on cost, so you will be cost cutting। Decline stage में there is little product differentiation। ठीक है। अब मार्केट में competitors आ गए हैं। ठीक है। So that product has a lot of competition by the decline stage। Cost minimization is important। ठीक है। ओवर कैपेसिटी है इंडस्ट्री में बिकॉज देयर आर मोर competitors now, there is a lot of competition। Rule 9 to eliminate items not returning good margin, reduce capacity। ठीक है। so you will at the product decline stage पे आ जाता है, you will start decreasing your capacity because you will not be making more of that product। ठीक है। फोरकास्टिंग जो इट हैज़ अ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। ठीक है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बेसिकली रेफर्स टू द फैक्ट दैट फोरकास्टिंग है इट्स की ना फर्म की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। आप जब भी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं अपनी कंपनी के लिए तो यू मेक लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। दोज लॉन्ग टर्म फोरकास्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्ट्रेटजी। ठीक है। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं बेस्ड ऑन दिस लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। This point of view से it has a strategic importance। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिसीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब आप स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं then you have to decide how much human resource you are going to need, whether you need to hire new workers, train or lay off workers। ठीक है। कैपेसिटी के डिसीजन होते हैं, whether you need to increase or decrease capacity। अगर आपको लगता है कि कैपेसिटी इज इनफ और आगे जाके एकदम से आपको प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ जाती है, तो देन यू रियलाइज यू डोंट हैव इनफ कैपेसिटी। ठीक है। तो आपकी फैक्ट्री में इतनी जगह नहीं है कि आप
मज़ीद प्रोड्यूस कर सकें, दैट लीड्स टू प्रॉब्लम, ठीक है। सो आपको कैपेसिटी भी पहले से फोरकास्ट करनी पड़ती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज कैपेसिटी शॉर्टेजेस हों, if there are capacity shortages, that can result in undependable delivery, loss of customers and loss of market share as well. सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है गुड सप्लायर रिलेशन एंड प्राइस, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली इट्स अबाउट मैनेजिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन द कंपनी एंड डिफरेंट सप्लायर्स, ठीक है। तो यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स इट्स गुड, उसके लिए भी फोरकास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिमांड खास तौर पर फोरकास्ट करनी पड़ती है, ठीक है, पहले से। यू हैव टू फोरकास्ट कि हाउ मच यू विल बी प्रोड्यूसिंग, ठीक है। आपने जितना प्रोड्यूस करना था उसके हवाले से, उसके मुताबिक आपने सप्लायर्स को ऑर्डर्स देने होते हैं ऑफ रॉ मटेरियल्स या ऑफ स्पेयर पार्ट्स। सो दीज आर 7 स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोरकास्टिंग, ठीक है। पहले तो यू हैव टू डिटरमिन व्हाई डू यू नीड दैट फोरकास्ट फॉर, ठीक है। आपको फोरकास्ट क्यों चाहिए, वेदर आर यू लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, उसके लिए आपने फोरकास्ट करना है, या आपको लगता है कि यू नीड टू टेक सम कॉस्ट कटिंग मेजर्स। आपका प्रोडक्ट जो है वो इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको फोरकास्ट बनाना पड़ता है। देन यू हैव टू सेलेक्ट द आइटम्स टू बी फोरकास्टेड, ठीक है। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि किस चीज़ का फोरकास्ट बनाना है, ठीक है। आपने कैपेसिटी का फोरकास्ट करना है, सेल्स का करना है, किसी और चीज़ का करना है। देन यू हैव टू डिटरमिन द टाइम हराइजन ऑफ द फोरकास्ट, ठीक है। फिर आपने टाइम हराइजन डिसाइड करना है वेदर ये फोरकास्ट इज गोइंग टू बी ऑफ अ शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, कुछ महीनों का होगा, मीडियम टर्म होगा, ठीक है, या लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म टिपिकली मीन्स फोरकास्ट इन्वॉल्विंग सेवरल ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, यानी आज से 2 या 3 साल, टिपिकली आज से 3 साल बाद का, ठीक है। Then you have to select a forecasting model. There are different forecasting models. We will discuss those in this chapter. Then you have to gather data, ठीक है। आप जब भी फोरकास्टिंग करते हैं यू हैव टू गैदर डेटा, यू नीड डेटा टू मेक फोरकास्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सेल्स का अगर फोरकास्ट करना है, इफ यू वांट टू फोरकास्ट फ्यूचर सेल्स, यू नीड डेटा अबाउट पास्ट सेल्स, ठीक है, ठीक है। सो वंस यू गैदर डेटा यू यूज द फोरकास्टिंग मॉडल टू मेक अ फोरकास्ट, ठीक है। सो आपके पास फोरकास्ट की जब रिजल्ट्स आ जाएं, देन यू हैव टू वैलिडेट दोज रिजल्ट्स, यू हैव टू मेक श्योर दे आर द करेक्ट रिजल्ट्स, एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स के मुताबिक आपको देन यू हैव टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। वेल हम फोरकास्टिंग पे काफ़ी टाइम भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है, एंड वी हैव सेवरल मॉडल्स which are available to make forecast, but the sad reality forecasts are seldom accurate, ठीक है। आप जो भी फोरकास्ट करते हैं, they are basically based on some mathematical या statistical models, and they are not very accurate, ठीक है। At least they are not 100% accurate, ठीक है। At best forecast जो है आपको एक estimated values देते हैं। So most techniques used in forecasting they assume an underlying stability in the system, which is not really true. Product family and aggregated forecasts are more accurate than individual product, ठीक है। आप जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके उनकी फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि आप एग्रीगेटेड फोरकास्ट करते हैं, यानी कि डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा करके फोरकास्ट करते हैं, तो दैट इज़ अ बेटर मेथड बिकॉज यू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल फोरकास्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो बेहतर होगा आप उनकी ग्रुपिंग करके उनकी फोरकास्ट करें, दैट विल गिव यू मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है। ठीक है, फोरकास्टिंग अप्रोचेज में मेनली वी यूज 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स, एक क्वालिटेटिव मॉडल मेथड्स हैं, ठीक है। वी मेनली यूज 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स। पहली टाइप मेथड्स हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स, एंड द अदर वन इज क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड सिंपली इज मींस कि वी मे यूज अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स इन दैट, ठीक है। हम मैथमेटिकल मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स की इक्वेशन यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की इक्वेशन यूज़ करते हैं, दोनों के प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव मॉडल्स आर डिफरेंट, ठीक है। क्वालिटेटिव मॉडल्स में
या क्वालिटेटिव मेथड्स में वी डू नॉट मेक यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज सच, ठीक है। We use qualitative methods when the situation is vague and little data exists. अगर आप हमारे पास कुछ चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है तो वी विल यूज़ क्वालिटेटिव मेथड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेल्स से रिलेटेड कोई डाटा नहीं है, so we mainly need data from the past, not about the present or future basically. जब हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, इसका पास्ट डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी पास्ट डेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली इन्वॉल्व्स इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट क्वालिटेटिव मेथड्स। इसमें हम इंट्यूशन एक्सपीरियंस का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल तब होता है सिचुएशन स्टेबल है, ठीक है, विच बेसिकली मीन्स वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू टेक्नोलॉजी। ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में पहले से पता है, ठीक है, वी हैव नॉलेज अबाउट दैट एंड वी, अगर हमारे पास नॉलेज है तो प्रॉब्लली द सिचुएशन इज स्टेबल। एंड उसके अलावा द अदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटिटेटिव मेथड्स इज यू नीड टू हैव हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा बेसिकली मीन्स नीड टू हैव डेटा अबाउट द पास्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स की अगर आपने फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी, यू नीड टू हैव डेटा अबाउट द पास्ट, पुराना डेटा आपके पास होना चाहिए सेल्स का। सो द ओनली क्वांटिटेटिव मेथड्स इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले से मार्केट में हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें पहले से पता है। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यानी करंट टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी उस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पहले से पता है, वी ऑल्सो है पास्ट डेटा अबाउट दैट, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स, ठीक है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मेथड्स की एग्जांपल एक टेक्निक है ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन, ठीक है। इसमें भी पूल ओपिनियन ऑफ हाई लेवल एक्सपर्ट्स समटाइम्स ऑगमेंटेड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। डेल्फी मेथड में वी टेक ओपिनियन ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स व्हिच आर क्वेरीड का मतलब है दे आर क्वेश्चनड आइटरेटिवली, ठीक है। आइटरेटिव मींस रिपीटेटिवली, ठीक है। इट्स आइटरेटिव is basically it's a mathematical technique, उसकी हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, मोर डिटेल, ठीक है। तो ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन में होता है इट इन्वॉल्व्स स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई लेवल एक्सपर्ट्स एंड मैनेजर्स, देन वी हैव ग्रुप एस्टिमेट्स डिमांड बाय वर्किंग टुगेदर, ठीक है। सो वी फॉर्म अ ग्रुप ऑफ हाई लेवल एक्सपर्ट्स, ठीक है। कुछ हाई लेवल एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप जो एस्टिमेट करता है डिमांड, ठीक है। देन दे कंबाइन देयर मैनेजरियल एक्सपीरियंस विद स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, इट्स रिलेटिवली क्विक टेक्निक। इसका एक डिसएडवांटेज है ग्रुप थिंक डिसएडवांटेज, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज मेंट बाय ग्रुप थिंक, दिस इज समथिंग यू स्टडीड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, okay. So I will end the lecture over here, ठीक है। So before I end the lecture I'll just quickly go through हमने आज क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, ठीक है। हमने डिज्नी वर्ल्ड के बारे में थोड़ा पढ़ा है कि हाउ दे यूज फोरकास्टिंग फॉर देयर बिजनेस, ठीक है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज फोरकास्टिंग इज यूज्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस, basically what is forecasting? It is the process of predicting a future event,
हम फ्यूचर में किसी चीज़ का पता लगाना चाह रहे होते हैं. It is the underlying basis of many business decisions related to production, inventory, personnel, facilities. ठीक है. उसके अलावा forecasting time horizons है. ठीक है. शॉर्ट रेंज फोरकास्ट होते हैं विच और फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. फिर मीडियम रेंज फोरकास्ट है, थोड़े ज़्यादा अरसे के लिए होते हैं. फिर लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है जो कुछ सालों के बाद की बात करते हैं. ठीक है. मीडियम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट डील विद मोर कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज. शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग यूजुअली एम्प्लॉयज डिफरेंट मेथडोलॉजीज देन लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग. Short term forecasts tend to be more accurate than long term forecasts. Influence the product life cycle का बड़ा influence है on forecasting. ठीक है. तो basically every stage of product life cycle requires a different type of forecast. So as the product passes through life cycle, forecasts are useful in projecting stocking levels, inventory levels and factory capacity. So this is a diagram which shows different stages. एंड स्टेजेस में क्या होता है, लाइक इंट्रोडक्शन में आपके पास इट्स बेस्ट टाइम टू इंक्रीज मार्केट शेयर और डिक्लाइन स्टेज इज द बेस्ट टाइम टू कंट्रोल कॉस्ट. इंट्रोडक्शन में सम डिसीजंस आर मोर इम्पोर्टेंट लाइक प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट क्रिटिकल है. इसके अलावा फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन चेंजेस आर इम्पोर्टेंट. ग्रोथ द फोरकास्टिंग इज क्रिटिकल. डिक्लाइन में लिटिल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज नीडेड. टाइप्स फोरकास्ट होते हैं. इकोनॉमिक फोरकास्ट है विच बेसिकली एड्रेस बिजनेस साइकिल, लाइक अब बिजनेस साइकिल में चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन इन्फ्लेशन रेट की फोरकास्ट किए जाते हैं. जीडीपी भी इसमें फोरकास्ट किया जाता है. उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट है विच बेसिकली प्रेडिक्ट रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इम्पैक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है. आपने देखना होता है टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है. अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो कितनी तेज़ी से आगे आ रही है. डिमांड फोरकास्ट होती है. ठीक है. वी फोरकास्ट डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. सेल्स भी उसमें आ जाती है. ठीक है. सो वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फोरकास्टिंग. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट forecasting has a strategic importance. So these are the 7 steps involved in forecasting, which begins with the determine the use of forecast, select the items to be forecasted, then you determine the time horizon of forecast, then you select the forecasting model, and you end with validating and implementing results. ठीक है. Reality is forecasting is seldom perfect. It's never accurate. So forecasting में we mainly use qualitative methods and quantitative methods. So qualitative methods are used when the situation is vague and little data exists. It often involves intuition and experience. Quantitative methods we use it when the situation is stable and historical data exist. So mainly used for existing products and current technology. Involves a lot of mathematical modeling. फिर हमने qualitative methods कुछ examples discuss की थी like Dewey of Executive Opinion and Delphi method. ठीक है. So that is the end of this lecture. Class, thank you so much for your time and take care. Bye.